ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰ ਨੰਦਾ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੰਦਾ ਸਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਰ ਤੋਂ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਏ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਸਰ ਕੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਆ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਐਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ এনवायरमेंट ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਪਨੀ ਤਰਫ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਰਐਵਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਿਊਜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਬਿਲੀਵ ਬਣਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ हैं बहुत बार सर। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਐਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਰ ਫੋਰਐਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ? ਫੋਰਐਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਇਹ 14-15 ਸਾਲ ਫੋਰਐਵਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ 40-40 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਰਐਵਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਫੋਰਐਵਰ 'ਚੋਂ। ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰਾ এনवायरमेंट ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਪੂਲ ਹੈ, ਆ ਸਾਰਾ ਪੂਲ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਪੂਰਾ हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो वेलकम है आपका इस सेकंड मीटिंग के अंदर। आज ये मीटिंग क्यों रखी गई है? आपने एक 5:30 बजे हमारे बिजनेस पार्टनर, बहुत ग्रेट लीडर कुलवीर सर की मीटिंग लगाई होगी, जिसमें आपको इस बिजनेस के बारे में गाइडेंस दी गई थी कि हमारा बिजनेस क्या है। अब दोस्तों, ये जो हमारा सेमिनार था वो आधे घंटे का था, 30-35 मिनट का। वो आप खुद समझ सकते हो, लाखों रुपया का जो बिजनेस है, लाखों रुपए कमाने वाला जो बिजनेस है, वो आधे घंटे में क्लियर नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ हमें एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके लिए एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा। पर एक बात जरूर है कि अगर उस मीटिंग को लगाने के बाद आज आप इस मीटिंग के अंदर बैठे हो तो आपने कुछ ना कुछ इस बिजनेस के अंदर देखा होगा, कुछ ना कुछ आपको आज अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ लगा होगा कि मैं यहाँ से अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ इस बिजनेस के थ्रू। तो दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। बेसिकली मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। इस बिजनेस के अंदर मुझे पूरे 6 साल हो चुके हैं। 6 साल पहले, इस बिजनेस के अंदर आने से पहले, मेरा खुद का कारोबार है।
अब दोस्तों सवाल एक आपसे छोटा सा है, अगर आप कभी भी मेरी बातों को आप ऐसे मत सोचना कि मैं ईगो में बोल रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ अपनी बैकग्राउंड बता रहा हूं। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप अपने आप को जवाब देना कि अगर आप पहले से 2.5 से 3 लाख रुपए अर्न कर रहे होते, क्या आप इस बिजनेस में आते? शायद 90% लोगों का सवाल जवाब होता है शायद नहीं सर। तो दोस्तों मैं वो पर्सन हूं जो चंडीगढ़ में पहले से ही 2.5 से 3 लाख रुपया एक अनदर बिजनेस से अर्न कर रहा था। वो 2.5 3 लाख रुपया कहां से आता है मुझे? मैंने 11 12 12 साल खेती बाड़ी की है, 18 20 किले का फार्म हाउस है मेरे पास, चंडीगढ़ में एक शोरूम है जो रेंट पे दिया हुआ है, मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूं चंडीगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और साथ साथ मेरे पास वाटर टैंकर का बिजनेस है चंडीगढ़ में जो अभी मैं बेच चुका हूं, पिछले 4 साल से बंद कर दिया मैंने। तो दोस्तों 6 साल पहले मेरी जो जिंदगी थी बहुत अच्छी चल रही थी। फर्स्ट टाइम, जैसे आज आपने एक मीटिंग अटेंड की थी, जब फर्स्ट टाइम मुझे फॉरएवर के बारे में पता लगा तो बिजनेस मुझे कुछ अच्छा लगा जैसे आपको लगा है, पर मन के अंदर, माइंड के अंदर काफी सवाल पैदा हो गए जिनका मुझे जवाब चाहिए था। अब बिजनेस तो अच्छा लगा, लेकिन हम जब मार्केट को देखते हैं तो हमें याद आता है कि पहले भी 2 4 कंपनियां 10 कंपनियां ऐसी आ चुकी हैं। लगता है जी, मुझे भी लगा था ये तो वही काम ना हो, किट बेचने वाला, एक के नीचे दो के नीचे दो लगाने वाला, या घर घर बेचने वाला, या कंपनी ना भाग जाए। ऐसे कुछ सवाल मेरे मन में भी आए थे 6 साल पहले। अब दोस्तों सवाल तो मन में आए, अब मैं ये सवालों का जवाब किससे लूं? एक तो मेरे वो दोस्त थे जो बचपन से मेरे साथ थे, एक वो जिन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में गाइड किया था। अगर दोस्तों से ये सवाल पूछता तो उनका जवाब एक ही होता, भाई ये काम नहीं चलते, भाई ये काम नहीं चलते। दोस्तों उसका कसूर दोस्तों का नहीं था, असल में हमारे बुजुर्गों ने भी यही गलती की। जब भी कोई बड़ी इंडस्ट्री मार्केट में आई तो हमारे बुजुर्गों ने भी यही बोला था, ये काम नहीं चलते। तो मैंने अपने दोस्तों से सवाल पूछने की बजाय मैं उस सीनियर को मिला जिसने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था। जब मैं उसके पास गया, सेम सवाल उसने किया, कहता जी आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो, आपने मार्केट्स में या दोस्तों से क्यों नहीं पूछा? तो इतनी की जानकारी थी कि दोस्त मुझे जवाब नहीं दे पाएंगे सही। उसके पीछे भी कारण है दोस्तों। अगर मैं अभी आपको एग्जांपल दूं, 1980 के अंदर मार्केट में कंप्यूटर आया था और हमारे इंडिया के अंदर बैंकों के अंदर हड़तालें हुई थी कि ये कंप्यूटर है जो ये लोगों को बेरोजगार कर देगा, बैंकों के अंदर या मार्केट में नहीं आना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने एक ही बात बोली, ये काम नहीं चलेंगे। पर दोस्तों आज हम कंप्यूटर के क्या हैं जी, कस्टमर हैं, हमने बिजनेस नहीं किया। फिर दूसरा आया 1990-92 में इंटरनेट आया और मेरे फादर साहब ने क्या बोला, इंटरनेट नहीं चलेगा, क्या करेंगे, कौन लोग इंटरनेट यूज करेगा, इतना महंगा। दोस्तों हमने बिजनेस नहीं किया, ये कह के छोड़ दिया ये काम नहीं चलेंगे। तो आज ये मीटिंग कैसे लगा रहे हो आप? आपके पास इंटरनेट चल रहा है तब लगा रहे हो। तो आपने बिजनेस किया या कस्टमर बने? कस्टमर बने। फिर सन 2000 आया दोस्तों, याद कीजिए सन 2000 के अंदर आपके एरिया के अंदर जमीन के रेट, प्रॉपर्टी के रेट बहुत कम थे। क्या आपके बुजुर्गों ने कोई 10 15 20 एकड़ लिया जमीन? नहीं लिया, ये कह के छोड़ दिया। कहाँ रेट बढ़ने वाले हैं जी, कहाँ लोग कोठियां डालेंगे खेतों के अंदर? पर आज आपके सामने आपके शहर का 10 किलोमीटर का 5 किलोमीटर का एरिया कवर हो चुका है। आज प्लॉट नहीं मिल रहे हमें, बहुत महंगे हो चुके हैं। मतलब हमने क्या कह के छोड़ दिया सन 2000 में, ये बिजनेस ये नहीं चलेगा। फिर सन 2000 2003 आया, जब फोन का कारोबार आया। तो अगर आज से 18 साल पहले आपके घर में कोई ऐसी कंपनी आके ये बोलती कि आप फोन का कारोबार शुरू कर लो, आने वाले टाइम में मजबूरी बन जाएगा, तो हम करते? शायद नहीं, ये कह के छोड़ देते, ये नहीं चलेंगे जी। लेकिन आज मजबूरी बन चुकी है। तो दोस्तों ये कुछ पहले से इंडस्ट्रियां थी जो मुझे ये क्लियर कर रही थी कि अगर तूने भी इस इंडस्ट्री को ऐसे ही बोला ये काम नहीं चलेंगे, तो भाई तू भी आने वाले 5 4 साल में इसका कस्टमर तो बन जाएगा। तो दोस्तों मैंने उन दोस्तों से सवाल नहीं पूछा, मैं सीनियर के पास गया। मैंने अपने सीनियर से बात की कि मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए, अगर जवाब मिल जाता है तो मैं बिजनेस शुरू करूंगा। तो पहले जवाब लेते हैं
कि जो हमारे माइंड के अंदर जो हमारे सवाल चल रहे हैं उनका आंसर हमें मिलना चाहिए। उसके बाद ये बिजनेस क्यों बढ़ेगा, यहां से आप लाखों रुपया कैसे कमा सकते हैं, मैं 2.5 से 3 लाख रुपया कैसे अर्न कर रहा हूं, आपको सभी कुछ दिखाऊंगा और कैसे कमा रहा हूं ये भी बताऊंगा। तो पहले सवाल जवाब के ऊपर चलते हैं दोस्तों। तो सिंपल पहला सवाल था मेरा कि अगर कंपनी भाग गई तो मेरा क्या होगा जी। तो मेरे सीनियर का जवाब था, कंपनी भागेगी क्यों, कौन सा तेरे तेरे से इन्वेस्टमेंट करवाई है हमने, कौन सा तूने 50,000 या 1 लाख रुपया हमें दिया जो तेरा कंपनी लेके भाग जाएगी। मैं कहा राइट, सही बात है, कैसे भाग जाएगी, कुछ दिया तो है नहीं मैं, और क्या लेके भागेगी मेरा। ऊपर से प्रोडक्ट मुझे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, अगर मैं एक फॉर्म फिल कर लूं फ्री में तो डिस्काउंट पे, मतलब रेट फुल रेट वाली चीज भी मुझे डिस्काउंट पे मिल रही है, तो कंपनी थोड़ी भागने वाली है। और भागेगी क्यों, क्योंकि ना तो हमारी कंपनी का कोई शेयर होल्डर है और ना हमारी कंपनी किसी थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट बनवाती है, ए टू जेड काम खुद करती है। मैं कहा ठीक है ओके। मेरा दूसरा सवाल था दोस्तों कि घर घर जाके बेचने पड़ेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि सेल होगी तभी हमें कमीशन आएगी। अब घर घर जाके बेचने वाला काम तो मैं नहीं कर सकता। कहते जी करके देख लो। मैं क्यों, कहता घर घर बेचकर कोई भी अमीर नहीं हुआ। मैं एग्जांपल दे चुका हूं कई बार। जैसे हम दूध पीते हैं, सुबह शाम दूध पीते हैं, हमारे घर में दूध दो तरह से पहुंचता है, दो तरीके से घर में दूध आता है। एक दूध वाला देने आता दूध, दूध वाला। दूसरा हम पैकेट बंद लेके आते हैं, वेरका या अमूल का। अब दोनों प्रोडक्ट सेम है, हाँ जी, वेरका भी दूध बेच रही है, दूध वाला भी दूध बेच रहा है। अब दूध वाला सुबह से लेकर शाम तक अकेला दूध बेचता है, क्या वो अमीर हुआ दोस्तों, नहीं, मेरे गांव वाला तो नहीं अमीर हुआ। पर दूसरी तरफ हम वेरका की बात करें, वेरका भी दूध बेच रही है। अब वेरका कितनी अमीर हो चुकी है, बहुत ज्यादा। उसने क्या किया, अकेले दूध नहीं बेचा, उसने तरीका चेंज कर दिया, अपना दूध एक नेटवर्क बना के, मतलब पूरे पंजाब के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर देकर, डिस्ट्रीब्यूटरशिप देकर अपना नेटवर्क बना लिया और उस नेटवर्क के थ्रू अपना दूध बेचना शुरू कर दिया। एक दूध वाला जो 1 क्विंटल दूध बेचता है पूरे दिन के अंदर, और वेरका कितना जी, मैं कहता हूं 1 लाख लीटर बेच लेती होगी। हाँ जी, उसने क्या किया तरीका, कहता अगर तू अकेला दूध ये प्रोडक्ट बेचेगा तो अमीर नहीं हो सकता। अगर तू इस काम को घर पे रहते रहते ऑल इंडिया में कुछ सिलेक्टेड पर्सन को डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रोवाइड करा देगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर अपने एरिया में काम करेगा और तेरा नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाएगा और तेरा जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग शहरों में सेल होना शुरू हो जाएगा बिना वहां पहुंचे। बस सही है। अब तीसरा सवाल मेरा खड़ा हो गया जी कि अब लोगों की मिन्नतें करनी पड़ेंगी, क्योंकि नेटवर्किंग को लेके बहुत नेगेटिव होते हैं लोग, है ना, पहले थे आज नहीं है दोस्तों। आज नेटवर्किंग एक प्रॉपर प्रोफेशनल प्रोफेशनल बिजनेस बन चुका है। नेटवर्किंग 2001 के अंदर कुछ नेगेटिव सोच थी लोगों की, लेकिन आज सरकारें इसको प्रमोट कर रही हैं, कानून बन रहे हैं इसके ऊपर। कहते जी अगर आप लोगों से मिन्नतें करने वाला काम करोगे तो कोई नहीं आएगा तेरे साथ, अगर तू प्रॉपर अपना बिजनेस समझ के लोगों को गाइड करेगा तो बहुत लोग आएंगे। उसके लिए तेरे को सीखना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए भी राजी हो गया मैं। अब मेरा अगला सवाल जो सबसे बड़ा सवाल था कि मुझे प्रोडक्ट महंगे लगते थे। आप भी जब इसको हौली हौली नॉलेज लोगे आपको प्रोडक्ट महंगे लगेंगे शुरुआत के अंदर। अब मैंने बोला अपने सीनियर को, मैं कहा जी प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, ये मार्केट में कौन लेगा, बिकेगा नहीं बिकेगा, चलेगा नहीं चलेगा, महंगा प्रोडक्ट कौन लेगा। तो दोस्तों बड़ा अच्छा सवाल दिया मेरे सीनियर ने। वो कहता तू सस्ते के साथ काम करना चाहता है या महंगे के साथ। मैं कंफ्यूज हो गया, मैं क्या बोलूं। उसने क्या किया, मेरे सामने 2 पेन रख दिए। मैं अभी एक एग्जांपल देना चाहूंगा, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। हाँ जी, उसने बड़े अच्छे से मेरे सामने 2 पेन रख दिए। हाँ जी, एक पेन था 20 रुपए वाला, एक था पार्कर का पेन। तो उसने बोला कि तू 20 वाले के साथ बिजनेस करना चाहता है महंगे वाले के साथ, पर बंदा वही होता है ना, कहता महंगा। कहता मैं बोला, मैं कहा 20 वाले के साथ करना चाहता हूँ, हर कोई लेगा इसको, बहुत चलेगा। कहता ठीक है कर ले बिजनेस। अगर बिजनेस की तरफ देखें पहले, आपको कमीशन कितने % मिलेगी मार्केट के अंदर। मैं कहा 4% 5%। एक 20 रुपए का पेन बेच के तुझे कितने पैसे आ जाएंगे। मैं कहा 5% के लगा के चलो, अगर 10 का बिकता है तो कितने आएंगे जी, 50 पैसे। 20 का बिके तो 1 रुपया। हाँ जी, अगर एक पेन बेच के मुझे 1 रुपया बचता है,
और आपको ही पता है कि 20 रुपए वाले पेन में कितनी क्वालिटी होती है और कितना टाइम चलता है। वो 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, उसके बाद टूट जाता है, फिर रिप्लेस करो। मतलब ये पेन लगातार कितनी देर चल जाएगा? 6 महीना, साल, 2 साल, 4, 3 साल, मतलब लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी नहीं है। और दूसरी तरफ पार्कर, अब दोस्तों अगर बिजनेस करना है तो बेचने दोनों पड़ेंगे, है ना। अब दूसरा 400 रुपए का पेन बेचा मैंने, इसमें कितने पैसे बच गए मुझे? इसमें 20-30 रुपए बच गए एक पेन में। अब एक पैसे बच रहा है, एक बेच के 1 रुपया, एक पेन बेच के बच रहा मुझे 30-40 रुपए। अब कौन सा बेचना चाहिए जी? मैं कहा महंगे वाला। कहता आप नैनो की डीलरशिप लोगे कि बीएमडब्ल्यू की? मैं कहा बीएमडब्ल्यू की। कहता महंगा तब होता है जब सेम क्वालिटी मार्केट के अंदर सस्ती मिल रही हो, तब हम उसको महंगा बोलेंगे। एप्पल का फोन लाख, 1.25 लाख का बिकता है, तो आपको ही पता है कि इतना महंगा फोन कैसे बिक रहा है फिर, क्योंकि सेम क्वालिटी मार्केट के अंदर नहीं है। अगर सेम क्वालिटी कोई सस्ते वाली कंपनी देती, 20-30 हजार वाली कोई कंपनी एप्पल के बराबर की क्वालिटी देती, तो एप्पल 1.25 लाख का ना बिकता। हाँ जी, तो एप्पल के बराबर की क्वालिटी मार्केट में है नहीं, तो लाख का लोग लेते हैं। और यहां पर भी जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो दुनिया के बेस्ट हैं पर सबसे पहले, और कंपनी ने पेटेंट करवा रखे हैं, उनको कोई कॉपी नहीं कर सकता, और क्वालिटी दुनिया की बेस्ट। मैं कहा ठीक है जी। अभी ये सवालों का जवाब मुझे मिल गया। फिर मैंने शुरुआत की। अब शुरुआत की बात करें, ये बिजनेस चलेगा कैसे? सबसे बड़ी बात है बिजनेस बढ़ेगा कैसे। मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मेरे साथ बने रहिए। अभी आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अब दोस्तों ये ये आपने देखा होगा, पढ़ा भी है हमने, छोटी आंत बड़ी आंत हमारे पेट के अंदर होती है। इसके अंदर जैसे राइट हैंड में गोल लगा हुआ है सर्कल, इसके अंदर रेशे होते हैं, जैसे टावल के ऊपर रेशे होते हैं। अब टावल का काम क्या होता है जी? पानी को एब्जॉर्ब करना। इसका काम क्या होता है? जो हमने खाया पिया उसको हजम करना। यहां से न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जाती है, जहां से खून बनता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्या सुबह से लेकर शाम तक, क्या सुबह से लेकर शाम तक हम कोई नेचुरल चीज खाते हैं जी? शायद नहीं। पानी हमारा साफ नहीं रहा, हवा हमारी साफ नहीं रही, और खाने पीने की तो बात ही छोड़ दीजिए। सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी खाते हैं कुछ ना कुछ केमिकल बेस्ड होता है। अब दोस्तों हो क्या रहा है? जो हमारे पुराने बुजुर्गों की एज 100 साल होती थी, आज 60-65 साल रहेगी। कारण वही केमिकल। अब दोस्तों मार्केट के अंदर वेलनेस का कारोबार देखें तो आपकी आंखों के सामने बढ़ रहा है। हॉस्पिटल, डॉक्टर, जिम, सैलून, बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। अब जो 100 साल वाली एज थी वो 60-65 पे कैसे कैसे आ गई? क्योंकि वो जो हमें खाना मिल रहा है, जो हवा के सांस लेनी है, जो पानी पी रहे हैं, वो केमिकल हौले 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 हमारी आंतों में जम रहा है। मैं आपको एक डेमो करके दिखाऊंगा। ये बिल्कुल साफ पानी है दोस्तों, बिल्कुल साफ पानी है पीने वाला। अब दोस्तों जब हम छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, उस टाइम हमारी आंतें बिल्कुल साफ होती हैं इस पानी की तरह। अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम बाहर का खाना शुरू करते हैं। अब होता क्या है, वो केमिकल, जैसे ये बीटाडीन है, स्लो पॉइजन बोला जाता है, जख्म के ऊपर लगाते हैं कीड़े मार दवाई। ये भी ऐसे ही बहुत सारी कीड़े मार दवाइयां हम सब्जियों के अंदर, फ्रूट्स के अंदर हम खा रहे हैं डेली। तो ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूं। अब जैसे बच्चा हौले हौले बड़ा हो रहा है, उसकी पेट में क्या जा रहा है जी? केमिकल जा रहा है जी। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? अब सोचो, आपके घर में एक हौदी है पानी वाली, अब ये काला हो गया। अब वो हौदी के अंदर अगर हम 10-15 साल पानी साफ नहीं करेंगे तो पानी कैसा हो जाएगा जी? पानी गंदा हो जाएगा। ऊपर टैंकी में पानी कैसा जाएगा? गंदा। टुल्लू पंप उठा के पानी गंदा पहुंचाएगा। अब कई बार हम टैप खोलते हैं या पानी नल खोलते हैं तो पानी गंदा आता है, और हम घर वालों को क्या बोलते हैं? टैंकी साफ करवानी पड़ेगी, पानी गंदा हो चुका है। अब दोस्तों हमारा पेट भी तो टैंकी है। अब जो हम खा पी रहे हैं वो अंदर जा रहा है, वहां से जो खून बन रहा है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल वाला खून है, गंदा खून कह लो उसको, हाँ जी, वही हमारा हार्ट, वही हमारा टुल्लू पंप है, जो हमारा हार्ट है, उसी खून को पंप करके कहां पहुंचा रहा है? ब्रेन में, नस नस में। तो आपने सुना होगा कईयों को ब्रेन हेमरेज हो गया, हाँ जी, थायराइड हो गया, शुगर, कैंसर, बीपी, यूरिक एसिड, आजकल कोरोना, ब्लैक फंगस। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आपके शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं है, सीधी सी बात। अब आपको
ये केमिकल पेट का साफ करना पड़ेगा। अब सबसे पहले ये आंत किस किस के पेट में है जी? सभी के में। साफ किस किस को करनी चाहिए? सभी को। मतलब अगर आपके हाथ में कुछ ऐसी चीज आ जाए जो ये सभी को चाहिए, क्योंकि बिजनेस चलते हैं डिमांड और सप्लाई पे, बिजनेस डिमांड और सप्लाई पे। अभी आपको ये चीज समझ में आ गई कि पेट की सफाई तो सभी को करनी पड़ेगी, मजबूरी में करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में। तो भाई साफ कैसे होगा? अब ये हमारा एलोवेरा आता है। मैं सिर्फ आज एक प्रोडक्ट के बारे में गाइड करूंगा आपको, आगे हमारी अलग से नॉलेज मिलेगी प्रोडक्टों के बारे में, सभी तरह की जानकारी मिलेगी। अब ये एलोवेरा हमारा यूएसए से इंपोर्ट होके आता है। हाँ जी। अब ये जब सुबह उठ के आप खाली पेट पियोगे, मैं पी के दिखाता हूं आप लोगों को। अब ये आपके पेट में जाएगा। अब जब ये पेट में जाएगा, वहां जाके, हाँ जी, अब देखिए पानी साफ होना शुरू हो गया। हाँ जी, ये लो, ये पानी साफ हो गया। अब हुआ क्या? कोई जादू नहीं हुआ। अब जब आपने एलोवेरा पिया सुबह उठ के, आपकी आंतों में गया, जो आप सामने देख रहे हो, वहां पे जाके जो टॉक्सिन थे वो अपने अंदर खींच लिए इसने। आधे घंटे में जब पानी पियोगे, ये फ्लश आउट हो जाएंगे, स्टूल के राही, बाथरूम के राही। तो आप 220 तरह की बीमारियों से पहले ही बच जाओगे। तो आप मुझे बताइए, इसकी जरूरत किस किस को है? हाँ जी, किस किस को जरूरत है इसकी? सभी को। हाँ जी, किसको जरूरत है जी? सभी को। सुरेंद्र सिंह 6 साल पहले ये बात समझ गया था कि सुरेंद्र सिंह, बिजनेस चलता है डिमांड और सप्लाई पे। अगर मार्केट में किसी चीज की डिमांड हो, आप उस चीज को सर्च कर कर सप्लाई करना शुरू कर दो, वो भी नेटवर्क के थ्रू, तो आप अमीर हो सकते हो। तो आप बताइए कि इसकी डिमांड आने वाले टाइम में, पहले आप बताइए अभी इसकी डिमांड है या नहीं, और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी जी। अब सप्लाई करने के दो तरीके हैं, या तो घर घर बेचिए, घर घर बेच के आप अमीर नहीं हो सकते, वो तो काम हमारा है ही नहीं। तो आपने करना क्या है? यूज देन शेयर, प्रोडक्ट हमने शेयर करना है। अब अगर आपके पूरे इंडिया के अंदर 5-7 डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे, तो आप अकेले नहीं होगे, आपका एक नेटवर्क काम करेगा। और नेटवर्क क्या होता है जी? बिजनेस को बढ़ाने का तरीका। अब मैंने क्या किया, ये शुरुआत की, शुरुआत से आगे बढ़ा। अभी मैं आपको अपने बिजनेस की शुरुआत से दिखाऊंगा कि मैंने शुरुआत कैसे की, मेरी इनकम कैसे आई। अभी दोस्तों, हम कहते हैं जी पैसा भी आता है सर, नहीं आता। बिल्कुल, 6 साल पहले आया था। ये मेरे पास 2 गाड़ियां पहले से थी। हाँ जी, ये 2 गाड़ियां मेरे पास पहले से थी। फॉर्चूनर गाड़ी मैं चंडीगढ़ में रहते हुए चला रहा था, एक अल्टो गाड़ी। तो आप खुद समझदार हो, अगर पर्सन ने फॉर्चूनर रखी होगी तो कुछ ना कुछ इनकम भी जरूर होगी। अब बात करते हैं दोस्तों 2015 की, जब मैंने इस बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग की थी। अब जब मेरा पहला चेक आया था, वो आया था 8,825 रुपए। सुरेंद्र सिंह मेरा नाम है, फॉर एवर लिविंग इंपोर्ट ऊपर लिखा हुआ है। डेट चेक कीजिए आप, 15/6/2015। अब 2-2.5 लाख रुपए, 2.5-3 लाख रुपए कमाने वाले के घर में 8,000 आएगा, कुछ ज्यादा इनकम तो नहीं है दोस्तों। और घर वालों ने क्या बोला होगा? बहुत अच्छे है। नहीं, घर वाले, दोस्त, चलो मैं नहीं हटा, मैं आगे बढ़ा। अगला चेक आया मुझे 7,000 का। उसके बाद कितने का ये चेक? हाँ जी, ये चेक कितने का जी? 5,000 का। फिर 3900 रुपए, जरूर चेक करिए आप, डेट जरूर चेक कीजिए। उसके बाद फिर 5,000, फिर 1,717 रुपए, फिर 1,450 रुपए। और फिर मेरा चेक आया, ये 7वें 8वें महीने का चेक था, 762 रुपए। अब दोस्तों, अगर 6-7-8 महीने के बाद आपको 762 रुपए आएगा, तो आप क्या करोगे? इस बिजनेस को छोड़ोगे या करोगे? तो यहाँ पे फिर वही गलती होती है, हम 90% लोग बिजनेस को क्विट कर देते हैं। और दूसरी बात, आप खुद समझदार हैं, क्या लगता है कि 2-4-6 महीने में लखपति बना जा सकता है मार्केट में? नहीं दोस्तों, लोगों को कई कई साल लग जाते हैं अपने बिजनेस में पैसे पूरे करने के लिए। तो यहाँ तो पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया। और दूसरा, अभी 6-7 महीने तो हुए हैं। हाँ जी, मेरी जिंदगी का यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आया, यहाँ पे टी पॉइंट आया मेरा, जहां पे मुझे 2 रास्ते थे, एक लेफ्ट एक राइट। जिंदगी ने बोला, यारों दोस्तों ने बोला, कहते छोड़ यार, 700 रुपए तो है, कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ मैंने मार्केट देखी कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूं, ये मार्केट में कम हो रहा है या बढ़ रहा है। तो मैंने आंखें खोली, सर्च किया कि मार्केट में तो ये बिजनेस बढ़ रहा है। कैसे? आप बताइए। अभी जो बीमारी है वो कम हो रही है, बढ़ रही है? कोई भी। हाँ जी, शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, हाँ जी, ये बीमारियां कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं? बढ़ रही हैं जी। हॉस्पिटल वो भी बढ़ रहे हैं, डॉक्टर वो भी बढ़ रहे हैं,
जिम वो भी बढ़ रहे हैं, सैलून वो भी बढ़ रहे हैं, मतलब वेलनेस का कारोबार आपकी आंखों के सामने बढ़ रहा है। हाँ, मेरा नहीं बढ़ रहा तो कमी किसमें है? मेरे में। अगर 10वीं क्लास में, हाँ जी 10th में मेरी क्लास में 5 बच्चे फेल हुए हैं तो कसूर किसका है जी? स्कूल का या पढ़ाने वाले का? नहीं, उन बच्चों का, उन्होंने अच्छी एजुकेशन नहीं ली। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सीख नहीं पाया अच्छी तरह, मैंने और सीखा इसको और नॉलेज ली। अब ये जनवरी 2016 की बात है, डेट जरूर याद रखिए। हाँ जी, डेट जरूर याद रखिए, 2016 की बात है, 762 रुपए। अब फरवरी का चेक एक मिस है मेरे से, वो 7,000 का चेक था। इसके बाद मार्च का चेक याद ध्यान से देखिए आप, मार्च में कितना हो गया चेक? 16,994 रुपए। दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर हम बीए या बीटेक करते हैं तो 3 साल एजुकेशन लेने के बाद हमें 8-10 हजार की जॉब मिलती है मार्केट के अंदर, और यहाँ पे तो अभी मेरे 9-10 महीने हुए हैं जी। अब उसके बाद नेक्स्ट चेक का जो वो देखिए, हाँ जी अप्रैल महीने में 21,000, उससे अगले महीने 25,000, पूरे 1 साल के बाद यहाँ पे मैनेजर लेवल पहुंच गया मैं। मैनेजर लेवल मीन्स मिनिमम 60,000 इनकम। ये टीडीएस कटा हुआ है इसमें से, उस टाइम 10% टीडीएस कटता था, आज 5% कटता है, उस टाइम 10% कटा करता था। 60,000 से ऊपर इनकम है। फिर नो लिमिट, ये कोई चेन सिस्टम नहीं है कि 2 के नीचे 2 जोड़ दें। यहाँ पे कंपनी ने आपको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी है, आप जितने मर्जी लोगों के साथ काम कर सकते हो। हाँ जी, अगला चेक कितने का हो गया? 89। फिर मैंने इस बिजनेस के थ्रू, इस बिजनेस से i20 गाड़ी ली 8.5 लाख रुपए की। 2016 की बात है दोस्तों। चेक आगे बढ़े, फिर 83, हाँ जी फिर 83, फिर 85, पूरे 1.5 साल के बाद मैं 1 लाख रुपए को क्रॉस कर गया। अब दोस्तों अगर बात करें जॉब की, मैं जॉब को माड़ा नहीं बोलूंगा, मैंने भी जॉब की है, पर आप खुद सोचिए, अगर 10, 15, 20, 30 हजार से जॉब शुरू भी होती है तो 1 लाख पे पहुंचते पहुंचते हमारी उम्र 50 साल क्रॉस कर जाती है। तो यहाँ तो 1.5 साल हुआ अभी मुझे, क्योंकि जॉब और बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा अंतर होता है। और आगे ये लॉकडाउन पीरियड, जब लोगों की जॉब जा रही थी, लोगों के पास काम नहीं था, लोगों के बिजनेस डाउन जा रहे थे, सितंबर महीने में मुझे 2,25,000, ये बीच बीच में दिखाऊंगा, अगर आप मेरी स्टेटमेंट लेना चाहते हो तो सभी स्टेटमेंट भी आपको दे दूंगा मैं। हाँ जी, ये 2,17,455 रुपए 3.30 मेरे आईसीआईसी बैंक में ट्रांसफर हुए। ये मेरा बैंक न टेस्ट मैसेज, यही इनकम मेरी स्टेटमेंट है बैंक की, 2,17,455 रुपए 30 फॉर एवर लिविंग की तरफ से। और दोस्तों इंडिया छोड़िए, ये मुझे 2019 के अंदर ऑस्ट्रेलिया से $135 आए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मेरी वाइफ का नाम हरजीत कौर है। अब दोस्तों यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि अगर ये बोतलें बेचने वाला काम होता या बंदे जोड़ने वाला कहते जी चैन सिस्टम होती, तो भाई ऑस्ट्रेलिया तो मैं गया ही नहीं अब तक, वहां से डॉलर कैसे आ रहे हैं? जैसे मैकडी के मालिक को यूएसए में बैठे बैठे इंडिया से पैसा कमा रहा है, केएफसी का मालिक यूएसए में बैठा बैठा पैसा कमा रहा है इंडिया से, ऐसे ही मेरा नेटवर्क भी 4-5 कंट्रियों में तक पहुंच चुका है। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया छोड़िए, मुझे यूएसए से, हाँ जी 14/8/2020 $467। अब मेरा अकाउंट नंबर ध्यान से देखिए, ये आपको बार बार नजर आएगा उसी चीज में, सुरेंद्र सिंह मेरा नाम है, अकाउंट नंबर लास्ट में 0179, आईसीआईसी बैंक, यूएस डॉलर कितने जी? 467। हाँ जी, उसके बाद हाँ जी ये फिर आए 10वें महीने में, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए $146। उसके बाद फिर आए जनवरी में $355। हाँ जी, उसके बाद ये मेरी फरवरी का चेक है, हाँ जी जो जनवरी में आया था, फरवरी में ट्रांसफर हुआ 2,61,000 रुपए। उसके बाद ये 3 मंथ की इनकम है, पिछले 3 मंथ की, हाँ जी 2,53,000, 2,24,000। जो इस मंथ का चेक है मेरा, वो 3,982 रुपए 3 पैसे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना पैसा अकाउंट में आता भी है, या आप तुरंत अभी वाली स्टेटमेंट हमें दिखा सकते हो आप? जरूर जी, ये मेल है जो कंपनी की तरफ से मुझे आई। क्या बोला गया कि डियर सुरेंद्र सिंह, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है वो ये है, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अर्न ए बॉन्ड्स रुपीज 3,982 रुपए 3 पैसे
मंथ ऑफ अप्रैल जो मई महीने में मुझे ट्रांसफर हुए 2,85,032 रुपए 93 पैसे। अकाउंट नंबर सेम है दोस्तों, ध्यान से देखिए 0179 12/5/2021 को मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए। अब ये मेल तो आई, अकाउंट में भी आए, हाँ जी जरूर आए हैं। तो ये मेरी स्टेटमेंट है आपकी आंखों के सामने, ये अकाउंट नंबर है साथ में, हाँ जी अकाउंट नंबर स्टेटमेंट 12 मई 2021 को, हाँ जी 5वें महीने में फॉर एवर की तरफ से 2,85,932 रुपए 93 पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हुए। ये टेस्ट मैसेज है जो बैंक की तरफ से आया मुझे। अब आपको हकीकत में पता लग चुका होगा कि वाकई में पैसे आते हैं। और चौथे महीने में मुझे फिर डॉलर आए, $112 यूएसए से आए, हाँ जी न्यूजीलैंड से आए। दोस्तों यहाँ पे बात समझने वाली है कि मेरा खुद 5 कंट्रियों के अंदर चंडीगढ़ में बैठे बैठे चंडीगढ़ में मेरा बिजनेस चल रहा है। अब दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या छोटी मोटी कंपनी आपको यूएसए स्पॉन्सर कर देगी? नहीं दोस्तों, डुप्लीकेट कंपनी तो बिल्कुल नहीं कर सकती। एक जेन्युइन कंपनी, क्योंकि स्पॉन्सरशिप लेटर है दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है, रिश्तेदार स्पॉन्सर नहीं करते, यहाँ पे कंपनी मुझे स्पॉन्सर कर रही है। यहाँ पे ये 2018 के अंदर कंपनी ने मुझे यूएस से बुलाया था। इसमें पूरा लिखा हुआ है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये कंपनी का लेटर पैड है। नवास गोसवाला, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस वीजा यूनिट, यूएस एम्बेसी इंडिया। डियर सर, मेरा नीचे नाम लिखा हुआ है, मेरा पासपोर्ट नंबर है। दिस लेटर इज टू इन्फॉर्म यू दैट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स विल बी होल्डिंग 2018 ग्लोबल रैली, कहां पे जी? डलास में। और फ्री में जाना था मैंने, पर मुझे वीजा नहीं मिला, क्योंकि वीजा देने का काम किसका होता है जी? एम्बेसी का। दोस्तों इसके बाद अगर कोरोना ना आता और 2020 के अंदर मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, वो भी फ्री में कंपनी की तरफ से, मुझे फिर स्पॉन्सरशिप लेटर आई, और स्पॉन्सरशिप लेटर में फिर पासपोर्ट नंबर, मेरा नाम, और कंपनी ने हाँ जी सिडनी बुलाया था मुझे 26 अप्रैल से लेके 3 मई तक। और जिस पर्सन ने मुझे स्पॉन्सर किया था उसका पासपोर्ट भी मेरे पास आ चुका था। ये कंट्री हेड है ऑस्ट्रेलिया के। अब यहां से आपको अंदाजा लग गया होगा कि कंपनी कितनी जेन्युइन है और कितनी बड़ी है जो आपको स्पॉन्सर कर रही है फॉरेन कंट्री के अंदर। अब दोस्तों सेकंड गाड़ी 19 लाख रुपए की टॉप मॉडल क्रेटा मैं बाय कर चुका हूं। ये लॉकडाउन के अंदर लेके आया था जब लोगों के पास पैसा नहीं था। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत अमीर हूं, पर दोस्तों आप अंदाजा लगाओ लॉकडाउन के अंदर जहां पे लोगों के बिजनेस डाउन जा रहे थे और मेरा बिजनेस अप जा रहा था। क्यों? आपको पता होगा कि देखो वेलनेस का कारोबार, अभी कोरोना आया था, कोरोना दौर के अंदर ना तो कोई केमिस्ट की दुकान बंद हुई, ना डॉक्टर की दुकान बंद हुई, ना कोई हॉस्पिटल बंद हुआ। हाँ जी, ना कोई हॉस्पिटल बंद हुआ। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि ये जो बिजनेस है ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। तो आप बताइए मुझे, अब इंडिया में 2 चीजों की बहुत जरूरत है, वो क्या क्या? सबसे पहले सेहत, हाँ जी, दूसरा रोजगार। अब दोनों चीजें इंडिया में तो खत्म होने वाली नहीं है, वैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर खत्म नहीं होंगी, ना बीमारी खत्म होगी कभी, ना बेरोजगारी, ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ने हैं। अगर आज हर घर की बात करें, हर घर में मैं तो कहता हूं सभी पेशेंट हैं, किसी के दांत दर्द कर रहे हैं, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी को स्किन प्रॉब्लम है, किसी का यूरिक एसिड बढ़ रहा है। और दूसरा, हाँ जी सेहत भी सभी को चाहिए, और कम से कम 2-3% तो बेरोजगार भी बैठे हैं घर के अंदर। तो हम सेहत वाले को सेहत दे रहे हैं, रोजगार वाले को रोजगार दे रहे हैं। और दोस्तों 2-3 चीजें बातें करूंगा आपसे, उसके बाद मीटिंग क्लोज करूंगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रहा हो तो आप जरूर अपने सीनियर से बात कीजिए या उसको पूछिए। जैसे आज एक पर्सन ने मुझे पूछा कि सर आपके पास आईटीआर भी है क्या, आप पैसा तो दिखाते हो, क्या आप टैक्स भी भरते हो? दोस्तों ये मेरी आईटीआर है, हाँ जी मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें आपको फोटो खींच के डालनी पड़ेगी। मैंने 32 लाख रुपए की आईटीआर फिल की है और 1 लाख समथिंग मुझे टैक्स पड़ा सरकार का। आप सोच लीजिए, हाँ जी इस साल कोरोना दौर के अंदर मैं 26 लाख रुपया कमा चुका हूं पूरे साल के अंदर। जहां पे लोगों की जॉब जा रही थी, बिजनेस डाउन जा रहे थे, मैं इस साल में घर पे बैठ के 26 लाख रुपया कमा चुका हूं, क्योंकि ये बिजनेस कभी भी डाउन आने वाला नहीं है। ये चीज तो मजबूरी बन जाएगी, जैसे फोन मजबूरी बन चुका है दोस्तों, जैसे फोन आज मजबूरी बन चुका है, ये न्यूट्रिशन मजबूरी बन जाएगी आने वाले टाइम में। अब अगर आपने कस्टमर बनना है तो आपकी मर्जी,
या आपने बिजनेस करना है तो आपका बहुत बड़ा वेलकम है। दोस्तों कई बार हम कुदरत को या भगवान को बोलते रहते हैं कि मुझे मौका दे, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो आज अगर आज आपको मौका मिल चुका है, आज के बाद आप भगवान को नहीं बोल सकते कि आपको मौका नहीं मिला। और दूसरी बात दोस्तों, कहते हैं दशा और दिशा, ये दो चीजें होती हैं, दो वर्ड है। हाँ जी, दशा और दिशा। अगर अपनी दशा ठीक करनी है तो दिशा चेक कीजिए। मेरे दादाजी ने जॉब की है आर्मी के अंदर और फिर खेती बाड़ी की है। 105 साल हो गए गुजरे, 60 साल तो काम किया होगा उन्होंने। मेरे फादर साहब 50 साल में एक्सपायर हो गए थे। 30 साल उन्होंने भी काम किया होगा, 20 से 50। अब 60 और 30 90, 11-12 साल मैंने खेती बाड़ी की है। 100 साल एक ही दिशा में पूरा परिवार चल रहा था। कौन सी दिशा? जॉब खेती बाड़ी, जॉब खेती बाड़ी। घर में आल्टो भी नहीं आई थी, घर में आल्टो भी नहीं आई थी। तो पहले मैंने अपनी दिशा चेंज की, दशा ऑटोमेटिकली चेंज होगी। दोस्तों 1.25 करोड़ रुपए कमा चुका हूं इस बिजनेस के थ्रू। मुझे 5 चीजें मिली हैं। क्या मिली हैं जी? 5 चीजें। पहला सुख निरोगी काया, सेहतमंद हुआ, फैमिली सेहतमंद हुई। दूसरा सुख जेब में माया, आज 2.5 से लेके 3 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहा हूं। तीसरी चीज टाइम, लोगों के पास टाइम नहीं, मैं घर पे बैठ के बिजनेस कर रहा हूं। चौथी चीज लाइफस्टाइल, मैं दुबई जाके आ चुका हूं, बैंकॉक, सिंगापुर, रशिया, 4 कंट्रियां घूम चुका हूं। पांचवी चीज एक सिक्योरिटी, पैसिव इनकम। दोस्तों हमें एक्टिव इनकम के ऊपर काम नहीं करना, हमें पैसिव इनकम चाहिए कि ना भी रहे जिंदगी में तो घर पे इनकम आती रहे, सिक्योरिटी। अब कंपनी ने क्या किया, हमारी कंपनी इतनी एथिकल है, इतनी बड़ी है, अगर मैं मर भी जाऊं, मेरी डेथ भी हो जाए, तो मेरा जो बिजनेस है मेरी वाइफ को ट्रांसफर हो जाएगा। जो मेरे नीचे नेटवर्क काम कर रहा है, कंपनी उस नेटवर्क को खत्म नहीं करेगी, वो मेरा नेटवर्क है, मैंने मेहनत की है। तो कंपनी बोलती है तेरे बाद ये सारा पैसा तेरी वाइफ को आना शुरू हो जाएगा, और वाइफ के बाद मेरे बेटे को आना शुरू हो जाएगा। 3 पुश्तों तक मुझे सिक्योरिटी मिलेगी। तो और चाहिए क्या दोस्तों? और तीसरी बात, हम कहते हैं सर रिस्क, रिस्क किस चीज में है जी? आप बताइए। आपके जो घंटे 2-4 घंटे बचते हैं, आज घर में बैठे हैं, तो वही टाइम आपने सीखने में लगाना है, सीखने में लगाना है। तो नॉलेज देने के लिए हम बैठे हैं, सीखना आपने है। हाँ जी, लर्निंग विद अर्निंग। पहले लर्न करना है, फिर अर्निंग करनी है। तो दोस्तों अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो जरूर मुझे बताएं, मुझे इंस्टाग्राम पे छोड़ें या आप अपने सीनियर से बात करें, मेरे तक वो सवाल पहुंचेगा, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। और मेरी तरफ से इतना ही है। अगर आप नेक्स्ट मीटिंग में, हमारे हमारे जो नेक्स्ट मीटिंग चलती हैं डेली, हमारी मीटिंग होती हैं जिसमें हमें प्रॉपर समझाया जाता है आप लोगों को, अगर आप वो मीटिंगें लगाना चाहते हो, नेक्स्ट नॉलेज लेना चाहते हो, तो जरूर जिन लोगों ने आज आपको इन्वाइट किया है उनसे जरूर बात करें और कहें उनको कि हमारा फॉर्म फिल किया जाए। क्योंकि शायद आपको नहीं पता ना, आपको कई बार जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया वो भूल भी जाता है, आपने खुद उसको बोला है कि मैं अपना फॉर्म फिल करवाना चाहता हूं। आपका फ्री में फॉर्म फिल होगा, जहां से आपको कंपनी की तरफ से एक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर मिलेगा। आप हमारे सिस्टम का पार्ट बन जाओगे, आपको प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी। ठीक है जी, मेरी तरफ से इतना ही। बाकी आपका कोई भी सवाल होगा जरूर उनसे बात कीजिए जिन्होंने आज आपको इन्वाइट किया। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू सो मच।